ناظرین، ہم لوگ شدید دھوپ میں وادی السلام کی طرف اپنے کاروان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ہمارا کاروان باب الحسین ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ ہم لوگ وادی السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے، ہمیں شدید دھوپ کربلا کی مصیبتوں کی یاد دلاتی ہے. کس مصیبت میں بیوی زینب نے سفر پورا کیا ہے، اور ہم لوگ وادی السلام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ جناب حود پیغمبر اور صالح پیغمبر کی قبر کی زیارت کریں گے، اور آپ کو بھی اس کی زیارت کرائیں گے. جائے تو بھائی ارے بس دیکھ لیا. شاید زیارت ابھی یہاں پہ روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ممنون، مطلب گیٹ بند کر دیے ہیں انہوں نے. اب ہم لوگوں کو زیارت یہیں سے نصیب ہوگی. بس کوئی بات نہیں، کم سے کم دیکھ لیا تو وہی اسی کا شکر ہے. خدا ہے. وقت مل گیا دوڑ کے زیارت کر لی. دوڑ کے جناب بتا رہے ہیں کہ زیارت کر لی ہے، تو ہم لوگ کافی تیزی سے اندر چلے جا رہے ہیں. ورنہ گیٹس بند ہو گئے، زیارت نہیں. انہوں نے گیٹس بند کر لیا. جتنی ہو پائی ہم لوگوں نے زیارت کی، باقی انہوں نے گیٹ بند کر دیے کیونکہ اندر ریپیئر کا کام چل رہا ہے، اس لیے انہوں نے گیٹس بند کر دیے ہیں. اب ہم لوگ وادی السلام کے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کس چیز کی زیارت کرتے ہیں. یہ ہمارے کامل صاحب ہیں، اور کوئی نہیں گیا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دیکھیے، یہ فوٹو لگی ہوئی ہے. شیخ طباطبائی کی قبر ہے. شیخ علی طباطبائی، سید قاضی طباطبائی، جناب قاضی طباطبائی. آپ جو ہے یوٹیوب پہ ڈالیے قاضی طباطبائی، اور ان کے واقعے اور قصے ضرور سنیے. ان کے واقعے اور قصے میں جو ہے نا ایک اچھی سی زندگی آپ کو ملے گی. انسان کیسی زندگی گزارے، انسان مومن کیسے بنے، انسان اللہ والا کیسے بنے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان کا زندگی نامہ پڑھیں تو بہت سی آپ کی مشکلات ان کا زندگی نامہ آپ کے حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ وقت کے عالم، وقت کے فقیر، یعنی ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاضی طباطبائی وہ مشہور زمانہ عارف باللہ تھے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ آتا تھا تو وہ یعنی گنہگار، کوئی اللہ کا ایسا بندہ کہ جو گنہگار ہو، بہت زیادہ گنہگار ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے نا ان کو ایک عجیب جانور کی شکل میں لوگ دکھتے تھے. لیکن یہ کبھی کہتے نہیں تھے کہ تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ تم کسی جانور کی شکل میں ہمیں دکھ رہے ہو. ہاں، جب ایسی کوئی صورت ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے مغفرت کے لیے یہ دعا پڑھو اور استغفار پڑھو. تو لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ قبرستان میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. بیچ پر راستہ چھوڑ
बीच का रास्ता खाली छोड़ दीजिए बस, ये डबल बीच का खाली रास्ता छोड़ दीजिए बस, सब लोग साइड हो जाओ, साइड खाली बीच का रास्ता छोड़ दीजिए। हो सकता है वहाँ पे जगह न मिले, तो इस वजह से मैंने सोचा कि साए में ही रुके पूरा वाक़या आप लोगों को एकदम बता दें, थोड़ा सा 4-5 मिनट लगेगा, ठीक है? हौसला है ना, ठीक है? अगर नहीं तो रिचार्ज करें नारे हैदरी से। अच्छा ठीक है, एक नारे हैदरी। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर अली के चाहने वालों को रिचार्ज करना है तो नारे हैदरी से रिचार्ज किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। एक और नारे हैदरी, और नारे हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन फ़िद दुनिया वल आखिरह। अज़ीज़ान ज़ाहिरीन, मैंने ये फ़िक्रा पढ़ा है तो इसके बारे में एक जुमला आपके समातों के नज़र करता चलूँ। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, जितनी भी ज़ियारतें हैं आप सारी ज़ियारतें पढ़िए, किसी भी ज़ियारत में आपको ये जुमला नहीं मिलेगा, किसी भी ज़ियारत में आपको ये जुमला नहीं मिलेगा अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना। लेकिन जो है जब मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़िए जो ज़ियारत आशूरा है तो उसमें ये लिखा हुआ अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, पालने वाले हमें रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, पालने वाले हमें रिज़्क़ अता फरमा। वो रिज़्क़ क्या है? ज़ियारतुल हुसैन। यानी देखिए मौला इमाम हुसैन और अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना यानी पैसे की बात नहीं, दौलत की बात नहीं, ठीक है? ताजमहल, घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा नहीं, क्या? अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, पालने वाले हमें रिज़्क़ अता फरमा। क्या? ज़ियारतुल हुसैन, और वो भी ज़ियारतुल हुसैन क्या? फिर दुनिया, फिर दुनिया में, फिर दुनिया में वफिल कहना है। पालने वाले हमें दुनिया में भी और आखिरत में। कौन सी रिज़्क़? ज़ियारत इमाम हुसैन। बात यहाँ पे नहीं रुकी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअत, बात यहाँ पे नहीं रुकी। पालने वाले हमें लब्बैक या हुसैन, पालने वाले रिज़्क़ तो अता फरमा आका हुसैन की ज़ियारत। उसके बाद सिर्फ हमें ज़ियारत ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत ही नहीं चाहिए, पालने वाले हमें मरना भी है, पालने वाले हमें दुनिया से ज़िंदगी गुजार के जाना भी है। तो लिहाजा जब हम जाएंगे और जब फरिश्ते आएंगे, कब्र के जब फरिश्ते आएंगे और हमसे सवाल करेंगे कि तुम दुनिया में थे तो क्या लाए थे, तो पालने वाले अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन। अगर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आके ये कहे, ए मेरे अल्लाह, ये मेरा ज़ाहिर है, मेरा चाहने वाला, इसे शफ़ाअत, इसे बख्श दे। तो एक मरतबा मौला हुसैन की टूटी पसलियों वाली माँ मैदान महशर में खड़ी होकर ये कही, ए मेरे अल्लाह, वो मेरा हुसैन जिसके लाश के टुकड़े बात यहीं पे ख़त्म होती कि मैं अपनी बात ख़त्म कर देता। उसके बाद एक जुमला, शायद बीवी ये कहें मौला हुसैन की वो तो प्यारी माँ ये कहे, ए मेरे अल्लाह, मेरी निगाहें देख रही थी कि उम्र साथ मलून को कहता है कि घोड़सवारों कहो आओ अपने घोड़ों पर बैठो और इन घोड़ों की टापों से हुसैन के लाश को पामाल, इन घोड़ों की टापों से हुसैन के, मेरे अल्लाह मैं माँ थी, मेरा बच्चा टुकड़ा मेरे अल्लाह मैं माँ थी, मेरा बच्चा टुकड़ा हो रहा था। पता है कभी ऐसा होता है, अल्लाह दुनिया में साने होते हैं, नहीं होता तो आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कभी किसी बच्चे का एक्सीडेंट होता है और जब उसके लाश के टुकड़े हो जाते हैं, हाथ कहीं पैर कहीं सर कहीं, तो जब उसका
वहाँ लाशा लाया जाता है गठरी बना के और माँ के सामने रखा जाता है। तो एक मतलब माँ कहती है पालने वाले, ये क्या तूने कर दिया मेरी जिंदगी, मेरा बच्चा दुनिया से चला गया। तो माँ करबला की सरजमीन पर हुसैन की माँ खुद अपने आंखों से देख रही थी। कहीं आपको यकीन है ना, फिक्रा है ना, लिखा है ना तारीख में कि मौला इमाम हुसैन की माँ मैदान महशर में खड़ी होगी और अल्लाह से ये कहेंगी कि पालने वाले मेरे लाल हुसैन का ज़ाहिर है, इन्हें माफ़ कर दे, मेरे लाल हुसैन का ज़ाहिर है, इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें बख्श दे। ऐसा मुमकिन है कि वो कनीज़े ख़ास ये कहे, वो कनीज़े ख़ास ये कहे कि इन्हें माफ़ कर दे। दुनिया में एक जुमला और कहता हूँ, दुनिया में कोई अमल कबूल हो या ना हो, दुनिया में कोई अमल कबूल हो, लेकिन दुनिया के ये वाहिद अमल है जिसे ज़ियारत हुसैन कहते हैं। ये कबूल है 100%, 500% ये कबूल है। दुनिया का कोई ऐसा अमल की जिसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। अगर किसी भी अमल में रिया शामिल हो जाए तो अल्लाह उस अमल को कबूल नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने महल्ले और अपने शहर और अपने घर से दिखाने के लिए जाएं कि हम जा रहे हैं करबला, यानी दिखावे के लिए, हम लोगों को जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, यानी जिस अमल में रिया शामिल हो जाए, अरे हम जा रहे हैं करबला, हम जा रहे हैं करबला, यानी रियाकारी करें, दिखाएं, तो पता है मौला को ये भी अदा बहुत पसंद है। दुनिया का ये वाहिद अमल है कि अगर रियाकारी में भी मौला हुसैन की ज़ियारत करबला आया जाए, तब भी परवरदिगार ये कहता है कि हर अमल, किसी भी अमल में रियाकारी हो हम उसे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन वो अमल की जो हुसैन से मंसूब है, अगर उसमें रिया भी शामिल हो जाएगी तो अल्लाह उसको कबूल करेगा। यानी ये दुनिया का वाहिद अमल है जिसे ज़ियारत इमाम हुसैन कहते हैं। अज़ीज़ान मेरा ये जवान है, मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ। ये जवान है, ऐ जवानों पैसे कमाते हो, ठीक है, घर में गुल्लक भी बनाओ, गुल्लक में थोड़ा थोड़ा हुसैन के नाम पर पैसे डालो। अगर नहीं आ सकते ना, कोई आज के गरीब ये पूछते हैं कि ये कहें क्या करूँ, ये तो चाहता है लेकिन मैं सुन मजबूर, तो जितना हो सके उसकी मदद करो। अब तो हर गांव और हर महल्ले में ऐसा भाई, हर गांव और हर महल्ले में अब तो अंजुमनें बननी चाहिए कि इस मौजू में पैसे इकट्ठे किया जाए और उन लोगों को भेजा जाए ज़ियारत। ऐ जवानों, दुनिया का वाहिद एक ऐसा अमल है कि अगर ज़ाहिर मौला हुसैन के लिए पैसा खर्च होगा तो मौला बहुत नवाजेगा, नहीं होगा तो मैदान महशर में मेरा दामन पकड़ लीजिएगा। आज हमारी तरक्की की दलील मौलाना कामिल साहब भी है, तरक्की की दलील बाबुल हुसैन टूर की, कि जो हिंदुस्तान का वाहिद टूर है कि जो हर महीने आता है। अच्छा यही है, हम कोई ना कोई ऐसा ज़ायर लाते हैं कि जिससे सिर्फ और सिर्फ टिकट दीजिए का पैसा देते हैं और उसको पूरी फैसिलिटी देते हैं और पैसा ये टूर लगाता है। बहुत सारे ज़ायर ऐसे आए हैं और हम लोगों ने मिल के ज़ियारतें कराई, उन्होंने पैसे भी नहीं लगा, कोई बात इसमें तो लिहाजा आज अगर आप चाहते कि आपके रिस्क में इजाफा और आपको तरक्की मिले, ठीक है, आप ये आज इस वादी सलाम की सरजमीन पर अहद करके चलिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप 10 मरतबा आ चुके हैं, तो 11वीं मरतबा आप उस गरीब को भेजिए, वो मुस्तहक जो तड़प रहा है, जो पैसे या गुर्बत की वजह से नहीं आ सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, पैसा दौलत दुनिया की सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, यहीं रह जाएंगी। अगर आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका अमल और कोई चीज़। इंशाअल्लाह हम दुआ कर रहे हैं, क्योंकि ये जुमला हमने इस वजह से कहा है कि ये वादियुस सलाम है। वादियुस सलाम यानी कब्र है, और कब्र की मंजिलों में जो चीज़ काम आएगी वो आपका अमल है, वो आपका अमल है, ठीक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी ज़ियारतों को कबूल फरमाए। ये वादियुस सलाम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, ताहद नज़र, जहाँ तक आपकी निगाह में ये ज़मीन आप समो ले अपनी आँखों में, वहाँ तक ये पाकिस्तान। दुनिया में 2 वादी हैं, बस 2 मिनट आपका लेंगे। दुनिया में 2 वादी हैं, एक वादी बरहूद और एक वादी सलाम। लोग पूछते हैं कि मौलाना वो लोग कि जो अली के चाहने वाले नहीं हैं, उनकी रूहें कहाँ जाती हैं? वो वादी बरहूद है। वादी बरहूद में जो अली से बुग़्ज़ करते हैं, जो मोमिनीन नहीं है, जो मुसलमान, जैसे जो मोमिनीन नहीं है, उनकी रूहें कहाँ जाती? वादी बरहूद। जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, यहूदी हैं, दीगर
लेकिन वो लोग की जो अली से मोहब्बत करते हैं, अली से मोहब्बत का दम भरते हैं, उनकी रूहें कहाँ आती हैं? वादी सलाम। इसी वादी सलाम में जहाँ हम खड़े हैं, हमारे आबाओ ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे आबाओ अजदाद जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी रूहें कहाँ हैं? और हम जब दुनिया से जाएंगे तो हमारी रूहें, और चाहने वाले मौला की तो वादी सलाम है। दुनिया बहुत सारे नबियों की कब्र कहाँ है? वादी सलाम में। मकाम इमाम ज़माना, मकाम इमाम जाफ़र सादिक, ये मकाम क्यों कहते हैं पता है? मकाम इसलिए कहते हैं कि मौला यहाँ पे आ चुके हैं और मौला ने वहाँ पे नमाज़ें पढ़ी, मौला ने वहाँ पे इबादत की, तो इस वजह से उसे मकाम वादी सलाम में एक मकाम है जिसे मकाम इमाम ज़माना कहा जाता है और मकाम इमाम जाफ़र सादिक। अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे दो मकाम है, एक मकाम इमाम ज़माना, एक मकाम है। तो अंदर वाला जो मकाम है वहाँ लेडी चली जाएंगी और बाहर वाला जो मकाम है वहाँ पे जेंट्स रुक जाएंगे, या वहाँ पे पहुँच के कैफियत देखिएगा, माहौल देखिएगा, जिधर लेडीज़ होंगी उधर लेडीज़ हो जाएंगे, जिधर जेंट्स होंगे वहाँ जेंट्स। ज़रूरी नहीं कि मकाम इमाम ज़माना पे 2 रकत पढ़े, मकाम इमाम जाफ़र सादिक पे पढ़े, जहाँ मौका मिल जाए वहीं पे दोनों पढ़े, यानी 2 रकत नमाज मकाम इमाम जाफ़र सादिक, 2 रकत नमाज मकाम इमाम ज़माना पे पढ़ के हदिया करना है। उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ से चलेंगे और होटल, जिसको हरम में जाना होगा वो हरम में ज़ुहर असर की नमाज़ पढ़ के आएगा, और जिसको जो है होटल आना है वो होटल जा सकते हैं। ये ज़ायरों की खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। هذا قبرستان وادي السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. माशाअल्लाह ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक ये कब्रिस्तान है, बहुत ही तवील और बड़ा कब्रिस्तान, नजफ़ का नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है ये वादी सलाम। मकाम इमाम जाफ़र सादिक। जल्दी करिए, नीचे आइए, नीचे आइए, आइए नीचे आइए, नीचे आइए। ये कुआं है, लोग आप लोग कहते हैं कुआं है, ये रमजान का मंसूब है, बस इधर से भी रास्ता है, आ जाइए, अंदर चल के निकल लीजिए, फिर निकल के आ जाइए। पहले वहाँ अंदर से आ जाइए. اگر شما حدیث داد می‌فرماید اگر شما بدانید انتظار فرج چه ثوابی دارد، میگن ای کاش که مهدی 5 دفعه ये कुआं इमाम ज़माना से मंसूब है।
كان بيت وكان خيل وغرف ابنيها كان بيت وكان خيل وغرف ابنيها المهم روحي وسيعة منا لمكم بيها المكان بملقى اهله والهلا براعيها المكان بملقى اهله والهلا عيد وياي المكان بملقى یہ ہم لوگ وادی السلام سے خروج کر چکے ہیں، خروج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ وادی السلام کا جو ویڈیو ہے یہ اپلوڈ کر دوں گا ہوٹل جا کے، پھر ہم لوگ حرم پہ جائیں گے اور جتنا حرم ہم لوگوں کا کور کرنا بچا ہے، مولا علی علیہ السلام کا حرم جتنا کور کرنا بچا ہے وہ بھی کور کر لیں گے انشاءاللہ آج ہی۔ اور حرم کی پارٹ 1 ویڈیو میں نے ڈال دی ہے جس میں میں نے زری کی زیارت کی تھی اور آپ سب ناظرین کو کرائی تھی۔ انشاءاللہ میری دعا ہے جتنے بھی ناظرین ہیں سب زائرین بن جائیں، اور انشاءاللہ پارٹ 2 بھی ابھی میں اپلوڈ کر دوں گا آج۔